Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. Today we will be starting with the new chapter of pharmacology, that is drug absorption. In the previous topics about pharmacology, about the introduction, we had discussed about pharmacokinetics and pharmacodynamics. So we had discussed there that pharmacokinetics is what the body does to the drug. जब हम एक ड्रग एडमिनिस्टर करते हैं थ्रू एनी रूट, जो पिछले लेक्चर्स में हमने डिस्कस किए हैं अबाउट रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, उसमें हमने ओरल रूट डिस्कस किया है और ओरल रूट में ओरल रूट, सबलिंगुअल रूट, रेक्टल रूट, और फिर उसके बाद हमने पेरेंटल रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन जिसमें इंजेक्शंस, टॉपिकल एंड inhalation. So this was the broad classification of routes of drugs administration. Basically हमने two में divide किए हैं. The first one is enteral route, which has three subtypes: oral, sublingual and rectal. Then we classified it into parenteral. Parenteral में फिर there were three classes: injections, inhalation and topical route of drug administration. So whenever we administer a drug through any of this of route of drug administration, तो बॉडी उसी के साथ क्या करेगा, मतलब ड्रग की एब्जॉर्प्शन, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन, उसकी बायो ट्रांसफॉर्मेशन और उसकी एक्सक्रीशन को फार्माकोकाइनेटिक्स कहते हैं, विच वी हैव डिस्कस्ड इन द फर्स्ट लेक्चर अबाउट फार्माकोलॉजी. दूसरा टर्म हमने यूज किया था अबाउट फार्माकोडायनामिक्स. इन फार्माकोडायनामिक्स वी स्टडी व्हाट द ड्रग डज टू द बॉडी. अब ये ड्रग जो है ये एब्जॉर्ब हो गया, ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया, ये बायो ट्रांसफॉर्मेट हो गया, एक्सक्रीट होगा, तो अब बॉडी में एब्जॉर्प्शन के बाद और बायो ट्रांसफॉर्मेशन के बाद ये ड्रग के क्या इफेक्ट्स होंगे ऑन द बॉडी. सो वी विल बी स्टार्टिंग विद द फार्माकोकाइनेटिक्स. फार्माकोकाइनेटिक्स में जो चार मेन टर्म्स है इन द डिफिनीशन, दैट इज ड्रग एब्जॉर्प्शन, biotransformation, distribution and excretion. So in bioabsorption, the drug is absorbed into the systemic circulation. While then the drug is biotransformation occurs, the drug is converted into active form in liver or in other organs. तो उसी के बाद यही ड्रग जो है इट विल बी ट्रांसपोर्टेड बाय सिस्टेमिक सर्कुलेशन, इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू ईच एंड एवरी सिस्टम एंड ऑर्गन ऑफ द बॉडी. एंड द फोर्थ टर्म दैट इज एक्सक्रीशन, that after some time, after half life of the drug will be metabolized and it will be excreted in urine and fecal matter and sweat and etc. So these are the four basic terms or parts of the definition of pharmacokinetics. So today we will be discussing absorption of drug. So it can be defined as when a drug is administered by any route of drug administration, it is absorbed and reaches into systemic circulation from the site of administration so that it can easily be distributed to various tissues and parts of the body. जैसा कि मैंने बताया, as I mentioned, कि जब हम ड्रग एडमिनिस्टर करेंगे थ्रू एनी रूट, द रूट may be oral, it may be sublingual, it may be rectal, it may be in the form of injections, intravenous, intramuscular, subcutaneous, or it may be in the form of inhalation, or it may be in the form of topical. So whenever it is administered, so from the site of administration it will reach into the systemic circulation. ये blood ये drug जो है इधर से जाएगा into the systemic circulation, मतलब blood में जाएगा from the site of administration. किस पर्पस के लिए सिस्टेमिक सर्कुलेशन में जाएगा, ब्लड में जाएगा, so that it can be distributed to various tissues of the body. For example, एक सिंपल सी एग्जांपल हम लेते हैं. We take a tablet of Panadol. Panadol की एक टेबलेट हमने ओरल रूट में हमने एडमिनिस्टर कर दिया, तो उसी के बाद यही जो Panadol की टेबलेट है it will go into the stomach. ये स्टमक में जाएगा and after going into the stomach और after going into the स्टमक में जाने के बाद ये ड्रग जो है उसकी जाएगा इनटू द लिवर.
लिवर में इसकी बायो ट्रांसफॉर्मेशन होगी और वहाँ से सिस्टेमिक सर्कुलेशन ब्लड के थ्रू ये जाएगा ड्रग इनटू डिफरेंट tissues, parts and organs of the body. So this was the definition of drug absorption. सिंपल सी बात है, किसी भी रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन से हमने ड्रग लिया और जब ये ड्रग जाएगा फ्रॉम द साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इनटू सिस्टेमिक सर्कुलेशन में जब एब्जॉर्ब होगा, दैट प्रोसेस इज नोन एज ड्रग एब्जॉर्प्शन. So there are lots of factors which affect the drug absorption. Drug absorption बहुत सारे ऐसे factors है जिसकी वजह से एक drug की absorption या ज़्यादा हो सकती है या कम हो सकती है. So the first factor in the drug absorption, that is lipid solubility. As there is a natural law that like dissolve like. So lipid solubility means whenever the drug is lipid soluble, it will easily be absorbed into the body. As you people have studied about the cell membrane in the first semester anatomy and physiology, that cell membrane is a lipid bilayer. So if the drug is lipid soluble, so it can easily be soluble in the lipid and it will pass through the cell membrane easily, so the absorption of the drug will be good. जबकि जो lipid insoluble drug होंगे उनकी एब्जॉर्प्शन थोड़ी सी कम होती है एज कम्पेयर टू लिपिड सॉल्युबल. सो whenever the drug is lipid soluble, it can easily be absorbed and it can easily be absorbed in a greater amount. Second factor affecting the drug absorption, that is physical state of the drug. That is very important कि ड्रग जो है किस फिजिकल फॉर्म में है, whether it is in the form of solid, whether it is in the form of liquid or whether it is in the form of gas. So lipid soluble या particles. अब we are taking a Panadol tablet, if it has large size, large molecular weight, तो इसकी एब्जॉर्प्शन थोड़ी सी कम होती है. लेकिन अगर हमने इस पेनाडॉल टेबलेट को स्मॉल पार्टिकल्स में डिवाइड किया, उसके फिजिकल स्टेट को हमने चेंज कर दिया, so it can easily be absorbed into the systemic circulation. So this is the second factor affecting the drug absorption. The third main factor for drug absorption, that is route of drug administration, is very important. As we have studied in the previous two lectures about in detail about the advantages and disadvantages of each and every route of drug administration in detail along with examples. So route of drug administration पे भी drug की absorption depend करता है. अब देखें इंट्रावीनस रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की बायो अवेलेबिलिटी वाज 100%, क्योंकि हमने डायरेक्ट जो है ड्रग को इंजेक्ट किया इनटू द सिस्टेमिक सर्कुलेशन, तो डायरेक्टली ब्लड जो है वो ब्लड में ड्रग चला गया एंड एब्जॉर्प्शन इज गुड. इसी तरह जब हम ओरल रूट पे लेते हैं तो द ड्रग विल गो इनटू द स्टमक, बायो ट्रांसफॉर्मेट होगा, some part of the drug will be lost in first pass mechanism, so the small amount of drug will be available to reach into the systemic circulation. So route of drug administration, it will affect the drug absorption. The fourth main factor affecting drug absorption, that is interaction with other drugs. जैसा कि बाद ऐसे ड्रग्स होते हैं, अगर प्रोटीन के साथ आपने टेट्रासाइक्लिन्स ले लिए, जिस तरह डॉक्सीसाइक्लिन हो गया, तो प्रोटीन जो है उसकी एब्जॉर्प्शन को कम करता है. या बाज़ औक़ात हम ऐसे दो ड्रग्स ले लेते हैं जो रिसेप्टर पे एक दूसरे के साथ कंपटीशन में होते हैं, कॉम्पिटिटिव होते हैं. एज इन द प्रीवियस लेक्चर्स we have discussed that each drug attached to a specific receptor, उसी रिसेप्टर के साथ अटैच होने के बाद it will produce its pharmacological effects. So अगर दो ड्रग्स है उनका रिसेप्टर सेम है तो there will be a competition between the two drugs. So interaction of drugs, it's very important. Interaction with फूड के साथ भी ड्रग्स की इंटरेक्शन होती है. एज आई मेंशन कि अगर आप लेंगे टेट्रासाइक्लिन जिसमें डॉक्सीसाइक्लिन आता है, वेब्रोमाइसिन आता है, अगर आप एरिथ्रोमाइसिन, अगर आप ऐसे ड्रग्स लेते हैं फूड के साथ, तो अगर आपके फूड में प्रोटीनिशियस पार्टिकल्स, प्रोटीनिशियस पार्ट ज़्यादा है, तो वही प्रोटीन जो है इन टेट्रासाइक्लिन की एब्जॉर्प्शन को कम करेगा. तो इसलिए हम कहते हैं कि
whenever you take a drug empty stomach, so it should be taken 30 to 45 minutes before the meal, क्योंकि ड्रग के साथ इंटरेक्शन की वजह से ड्रग की एब्जॉर्प्शन इफेक्ट हो सकती है. The sixth factor affecting drug absorption, that is diseases of the gut. गट की डिजीज़ में भी उसकी एब्जॉर्प्शन कम हो जाती है, क्योंकि एज यू नो that small intestine is the main part which is responsible for the absorption of drugs. जो डोडेनम में जो वेलाई है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है, जिनकी वजह से ड्रग्स की एब्जॉर्प्शन होती है. अब यही अगर आपने एक ड्रग लिया और आपके स्मॉल इंटेस्टाइन की कोई डिजीज़ है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम की कोई डिजीज़ है, जो लिवर, जिन लोगों में हेपेटिक डिजीज़ होते हैं, हेपेटाइटिस होता है, तो उसी की वजह से भी ड्रग की एब्जॉर्प्शन कम हो सकती है. द सेवंथ effect of that is factor affecting the drug absorption, that is first pass effect. First pass effect is the mechanism, as we have discussed is in the previous in the last lectures as well, कि फर्स्ट पास इफ़ेक्ट वो इफ़ेक्ट है, वो फिनोमेना है कि जब आप कोई भी ड्रग लेते हैं बाय एनी रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, तो यही ड्रग जो है ये जाएगा इनटू द सिस्टेमिक सर्कुलेशन, लिवर में जाएगा, उधर इसकी बायो ट्रांसफॉर्मेशन होगी. तो बायो ट्रांसफॉर्मेशन के दौरान सम पार्ट ऑफ द ड्रग इज़ लॉस्ट. ड्रग का जो है कुछ हिस्सा लॉस्ट हो जाता है और द रिमेनिंग पार्ट विल बी अवेलेबल टू प्रोड्यूस एज फार्माकोकाइनेटिक्स और फार्माकोडायनामिक्स इफेक्ट्स. फॉर एग्जांपल, अगर आपने पेनाडोल की एक टैबलेट ले ली, तो यही पेनाडोल की टैबलेट 100% अवेलेबल नहीं होगी अपनी थेरेप्यूटिक इफ़ेक्ट्स को प्रोड्यूस करने के लिए, क्योंकि बायो ट्रांसफॉर्मेशन के दौरान इस टैबलेट का 2%, 3%, 4% जो पार्ट होगा वो लॉस हो जाएगा. तो जो पार्ट लॉस हो जाएगा तो द रिमेनिंग पार्ट 80% रह गया, 50% रह गया, 85% रह गया. हर रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की अपनी बायो अवेलेबिलिटी परसेंटेज है. तो जितना पार्ट रिमेन हो जाएगा आफ्टर द मेटाबॉलिज्म, तो उसी को हम कहते हैं फर्स्ट पास इफेक्ट. तो जितना एक ड्रग का फर्स्ट पास इफेक्ट ज़्यादा होगा, तो कॉमन सेंस की बात है, मच एंड ग्रेटर पार्ट ऑफ द ड्रग विल बी लॉस्ट, सो अवेलेबिलिटी कम होगी. MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि इंट्रावीनस रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की बायो अवेलेबिलिटी डेट इज 100%. The eighth factor affecting drug absorption, that is surface area of the gut. That's very important कि जितना गट की गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की सरफेस एरिया ज़्यादा होगी, तो उतना ही उसमें ड्रग की एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगी. तो इफ़ एनी डिजीज़, फॉर एग्जांपल सीलियक डिजीज़ में, मेजेंटेरिक इस्कीमिया ऑफ द गट में, अगर कोई हिस्सा ऑफ द गट इज़ लॉस्ट, उसमें नेक्रोसिस हो गया और उसकी वेलाई को डैमेज हो गया, तो एज अ रिज़ल्ट उस गट की सरफेस एरिया कम हो जाएगी और सरफेस एरिया कम होने की वजह से ड्रग की एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगी. द लास्ट फैक्टर which is affecting the drug absorption, that is blood supply of the gut. It's very important. जितना ब्लड, एक एरिया की ब्लड सप्लाई जितनी ज़्यादा होगी, वहाँ पर उतनी ही उसकी ब्लड सप्लाई, उसकी ब्लड में एब्जॉर्प्शन ऑफ द ड्रग ज़्यादा होगी, क्योंकि एज वी हैव मेंशन्ड इन द डेफिनेशन ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन के ड्रग एब्जॉर्प्शन वो फिनोमेना है जिसमें एक ड्रग साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से एब्जॉर्ब होगा इनटू द सिस्टेमिक सर्कुलेशन इनटू द ब्लड, which will distribute it into the different parts of the body. So इसलिए अगर उस एरिया की ब्लड सप्लाई जितनी ज़्यादा होगी, तो ऑटोमेटिकली ड्रग की एब्जॉर्प्शन इनटू द सिस्टेमिक सर्कुलेशन भी ज़्यादा होगी. सो ऑल दीज आर द 9 to 10 factors which is affecting the drug absorption, and it's very important from MCQ's point of view, from paper point of view, and from Viva point of view. So understanding of these factors, that is very important. So these 10 factors are very important. Lipids lipid solubility, physical state, route of drug administration,
interaction with other drugs, interaction with food, diseases of the GIT, blood supply, first pass effect, and surface area of the GIT. So there will be 2 to 3 MCQs, ACQs, and from Viva point of view, this is very important. So memorize these factors affecting drug absorption by heart. So this openly comes in the paper or in the Viva. They will ask you first pass effect or metabolism. So I have discussed this in the previous slide as well, but the definition is when drugs are administered, some drugs metabolize in the mucosa of small intestine or liver before joining systemic circulation, which decreases the bioavailability of drug is known as first pass metabolism or effect. Bioavailability क्या होता है? Bioavailability ये है कि dead part of the drug which is available in the systemic circulation to produce its effects. तो जब हम ड्रग को एडमिनिस्टर करेंगे तो दिस ड्रग विल बी मेटाबोलाइज इन द म्यूकोजा ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लिवर. तो लिवर में और स्मॉल इंटेस्टाइन में मेटाबोलाइज होने के बाद इस ड्रग का कुछ पार्ट जो है वो लॉस हो जाता है. तो द रिमेनिंग पार्ट दैट विल गो इनटू द सिस्टेमिक सर्कुलेशन. तो जो रिमेनिंग पार्ट होगा वो सिस्टेमिक सर्कुलेशन में जाएगा. सो द इस मेटाबॉलिज्म की वजह से इन द म्यूकोजा ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन और इन द लिवर ड्रग की बायो अवेलेबिलिटी कम हो जाती है. दिस मैकेनिज्म इज नोन एज फर्स्ट पास इफेक्ट और मेटाबॉलिज्म. ये भी वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू से और एसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट. और इसके साथ जो इंट्रावेनस रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के है उसकी बायो अवेलेबिलिटी इज 100%. सो अक्सर एमसीक्यूज में आता है कि विच रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन हैज़ 100% बायो अवेलेबिलिटी. सो दैट इज इंट्रावेनस, क्योंकि इंट्रावेनस में the drug is not going into the mucosa of small intestine or liver, तो वो डायरेक्टली सिस्टेमिक सर्कुलेशन में जाएगा और 100% it will be bioavailable to produce its effect. So इंट्रावेनस रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की 100% बायोअवेलेबिलिटी है. इसके अलावा अगर आपने रेक्टल रूट से दे गया तो वो स्मॉल इंटेस्टाइन की मिकोजा में जाएगा, उधर उसकी थोड़ी सी मेटाबॉलिज्म हो जाएगी. तो कुछ पार्ट ऑफ द ड्रग विल बी लॉस्ट and the remaining will go into the systemic circulation. So this mechanism is known as first pass effect or metabolism. What is bioavailability? ये टर्म भी लास्ट उसमें आए हैं तो इधर ही डिस्कस कर लेते हैं. The fraction of unchanged drug that reaches into systemic circulation after its administration by any route is known as bioavailability. तो वही बात है कि ड्रग का वो अनचेंज फ्रैक्शन जो सिस्टेमिक सर्कुलेशन में जाएगा टू प्रोड्यूस इट्स इट्स इफेक्ट्स इज नोन एज बायोअवेलेबिलिटी. तो इंट्रावेनस की 100% है. तो यही बात है कि अगर आपने सिंपल एक टैबलेट ले ली फॉर एग्जांपल पीपीआई की ओमेप्राजोल की, अब यही ओमेप्राजोल टैबलेट जब आपने ओरल रूट से ले गया ये जाएगा इनटू द लिवर, तो लिवर में इसका कुछ हिस्सा लॉस्ट हो जाता है इन बायो ट्रांसफॉर्मेशन. तो कुछ रिमेनिंग जो अनचेंज पार्ट ऑफ द ड्रग है, अनचेंज पार्ट ऑफ द ड्रग जब जाएगा इनटू द सिस्टेमिक सर्कुलेशन, दैट अनचेंज ड्रग इज नोन एज बायो अवेलेबिलिटी. फैक्टर्स इफेक्टिंग बायो अवेलेबिलिटी. अब वो कौन कौन से फैक्टर है जो ड्रग्स की बायो अवेलेबिलिटी को इफेक्ट करेंगे? तो दीज आर द सेम लाइक द फैक्टर्स दैट वर इफेक्टिंग द ड्रग एब्जॉर्प्शन. उसमें है लिपिड सॉल्युबिलिटी, physical state of the drug, route of drug administration, interaction with other drugs, interaction with food, diseases of the GIT, first pass effect, surface area of the gut and blood supply. तो जितना lipid soluble होगा उतना ही जाएगा, जितना उसका first pass effect कम होगा तो उतना ही unchanged amount of the drug will go into the systemic circulation. So all these are different factors which is affecting the bioavailability of the drug. So thank you very much. This was all about the drug absorption, factors affecting the absorption of the drug, first pass metabolism, bioavailability, and the factors which are affecting the bioavailability. So this was the first component of the definition of pharmacokinetics. Pharmacokinetics पे एक पूरा यूनिट है, उसके जो 4 पार्ट्स है which I discussed in the start,
Okay, drug absorption, then uski distribution, biotransformation and excretion. We will be discussing each and everything in different lectures. So this the first component of the definition, that was drug absorption. It was discussed in the today's lecture. Thank you very much.